Hello friends, I hope you all good. So today I'm going to discuss English pedagogy. So who's are new in my channel, so please subscribe my channel and please like, share, comments on my videos. It gives me more motivation. So after 1 or 2 days I am uploading my video about English pedagogy and for Assam TET. So let's start the video. So first question is, there are 44 sounds in English. Out of these, how many sounds are vowels and how many are consonants respectively? So इंग्लिश में 44 साउंड्स दिए गए हैं और इसमें से कुछ वावल्स एंड कुछ कॉन्सोनेंट है. सो वावल्स क्या क्या है? ए ई आई ओ यू एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट. सो इसमें ऑप्शन दिया गया 24 एंड 20 एंड 24. इसमें से ए ई आई ओ यू इट्स 5, नॉट 20 और 24. सेकेंड ऑप्शन 5 एंड 31, sorry 39. And C number option is 22 and 22, and D number option is 10 and 34. So as 10 and 34 is incorrect, it's also incorrect, it's also incorrect, and correct answer is 5 and 39. 5 are vowels and 39 are consonants. So next question is, etymology is science of pedagogy, science of study of language, science of meaning of language, science of knowing the origin of word. Etymology means क्या है? etymology means कुछ origin होना, like words का origin होना. तो इसमें से pedagogy, science of pedagogy not is wrong. It's also wrong. Study of language and science of meaning of language is also wrong. And next one is the science of knowing the origin of word. This is the correct answer. Okay. So next question is, children can best learn a language when they having a good textbook, a proficient language teacher, inhabitation and the motivation. A good textbook अच्छा होने से किसको, मतलब लाइक लैंग्वेज लर्न करने में किसको इतना मज़ा आता है? हर किसी को नहीं आता है. जैसे कुछ टेक्स्ट बुक में क्या है ना, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए तभी जाके हमें पढ़ने में अच्छा लगता है. बट वो मैटर नहीं करता है कि उसमें लैंग्वेज कौन सा है. लाइक उसमें इंग्लिश हो तो जिसको इंग्लिश अच्छे से आता है तो उसको इसके लिए वो जो भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो अच्छा लगेगा. और अदर्स लैंग्वेज में जिसको अच्छे से आता है तो उसको वो अच्छा लगेगा. बट इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है. तो जब लैंग्वेज लर्न करने के लिए कैन बेस्ट लर्न लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग मोटिवेशन. अगर टेक्स्ट बुक अच्छा है फिर भी कुछ लोगों को मतलब लाइक टेक्स्ट बुक अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट फिर भी उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है. तो उसके लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए. ओके, तो राइट आंसर इज मोटिवेशन. नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, रीडिंग स्टोरीज, नोवेल, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग. इसमें क्या दिया गया? इंटेंसिव, extensive, loud and shadow. So reading stories, novel, comics and cartoon facilitates this reading is extensive reading. Stories out of the subject हो सकते हैं, novels भी out of the subject, comics and cartoons is also out of the subject होता है almost. ये क्या है?
एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है, ठीक है। देन 5th नंबर क्वेश्चन इज लर्निंग a language means learning all the skills of language, learning and using language skill in appropriate situation, learning to speak fluently in public, writing good books in the language. So कुछ लैंग्वेज लर्न करना, उसका मीन क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या हो सकता है। लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, learning and using language skill in appropriate situation, speak fluently, writing good books good book के लिए लैंग्वेज लर्न करना, मतलब इतना भी उसका साथ मीन नहीं करता लर्निंग लैंग्वेज के साथ। और फ्लुएंटली इन पब्लिक, अगर लैंग्वेज लर्न करना है तो उसके लिए फ्लुएंटली पब्लिक में अच्छे से बोलने के लिए होता है कुछ लोगों का कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज सीखना है ताकि मैं दूसरों के साथ फ्लुएंटली बात कर सकूँ, तो ये सब नहीं होता है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इज क्या है, लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, लर्निंग एंड यूजिंग, ये क्या है राइट आंसर, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। इसके बाद क्या है, द राइट of children to free and compulsory education was made in, right to education, we learn about right to education where government gives children free and compulsory education, which made in this year in 2007 is wrong, 2008 is also wrong, 2009 is right and 2010 is also रॉन्ग आंसर। 2009 को क्या हुआ है, ये राइटिंग स्किल RTE राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 2009 को हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर क्वेश्चन, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएट विद दैट स्किल। समराइजिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्टिंग, ये सब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वो पढ़ कर तो नहीं होता है, वो लिख के होता है। तो इसके लिए हम लोग के पास कितना ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में 5 है। रीडिंग, ये भी इनकरेक्ट है, राइटिंग इज करेक्ट आंसर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसन कोई सुन के कैसे कर सकते हैं कि नोट बना सकते हैं, सुन के, बोल के कैसे नोट बना सकते, नहीं कर सकते, पढ़ के कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा, कुछ भी नोट मेकिंग, कुछ भी समराइज करना है, कुछ भी रिपोर्ट बनाना है, उसके लिए क्या करना होगा, राइटिंग, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। NCF 2005 का जो प्रिंसिपल है उसमें वो कौन सा क्या है, करेक्ट नहीं है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ensuring children providing job opportunity, ensuring learning shifted away from the rote method, and D number question is making examination more flexible. So right answer is, इसमें right question was wrong answer, and for question right answer is ensuring children providing job opportunity। NCF ने ये नहीं बोला है कि स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई जो भी स्कूल लाइफ में या एजुकेशन रिलेटेड जो भी हम लोग के पास आर्टिकल आता है वो उसमें ये नहीं कहते कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, वो हम लोग के पढ़ाई के लिए जो भी सुविधा प्रोवाइड करना होता है पढ़ाई के लिए करते हैं, बट जॉब के लिए नहीं है। जॉब क्या है, वो खुद को करना है, उसके लिए खुद को कैपेबल बनाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑडिबल, नॉइजी, लाउड एंड साइलेंट, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो 9 नंबर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर मुझे आप लोग राइट कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आप लोग को कितना आता है, आप लोग राइट आंसर बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है। सो 10th नंबर क्वेश्चन इज
द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्यूरिंग द स्किल्स ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज। इसमें क्या दिया गया है, सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर क्वेश्चन आंसर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो 11 नंबर क्वेश्चन इज व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है वो हमें देखना है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। लेसन प्लान इज नॉट नीडेड फॉर एक्सपीरियंस टीचर, लेसन प्लान इज नीडेड फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर्स, लेसन प्लान स्पेसिफाइज द टीचिंग पॉइंट, लेसन प्लान गाइड्स द टीचर टू फॉलो द स्टेप इन टीचिंग लेसन। सो इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट आंसर है, तो कोई भी एक्सपीरियंस टीचर हो सबको लेसन प्लान की ज़रूरत होता है। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, लेसन प्लान इज़ नॉट नीडेड फॉर एक्सपीरियंस टीचर। लेसन प्लान सबके लिए अच्छा होता है और सबको ज़रूरत पड़ता है, कोई भी टीचर हो, एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, कोई भी हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, कोई भी हो, सबके लिए लेसन प्लान ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ रिपोर्ट इज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज, प्रोग्रेस, प्लान, प्रॉब्लम्स of something. Second one is record events for future reference in decision making. Third option is recommended specific action, and D number is all of the above. तो इसमें से जो रिपोर्ट हम लोग स्कूल टीचर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं उसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें ये भी राइट है। जो एक्टिविटीज़, प्रोग्रेस, प्लान के प्रॉब्लम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है उसके लिए भी ये भी राइट है। रिकॉर्ड इवेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी होता है। और इसके बाद रिकमेंडेड स्पेसिफिक एक्शन, और कुछ भी स्पेसिफिक एक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। और इसमें दिया है लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो 30 नंबर क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें देखना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूड्स द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल suit the learner mental age. Teaching learning materials should be interesting to the learners. Teacher learning materials is not an aid to the teacher. इसमें से राइट आंसर होगा डी नंबर, टीचर लर्निंग मटेरियल इज़ नॉट एन एड टू द टीचर। टीचर लर्निंग मटेरियल जो है तो वो एक एड होता है जो टीचर या स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है एड है। ओके, सो 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, द लेटेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच और मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, द सिचुएशनल अप्रोच, द डायरेक्ट मेथड। सो इसमें से अप्रोच और मेथड जो है टीचिंग इंग्लिश के लिए कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड इंग्लिश originated from this word dash angels, Anglo Saxons, Anglo England। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एंजल्स। सो आई होप आप लोग को समझ में आया, और आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियो को म्यूट करके आप लोग सुन सकते हैं या देख सकते। सो प्लीज़, मेरे वीडियोस बहुत कष्ट करके मैं बनाती हूँ, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, एक लाइक और कमेंट से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे इससे बहुत लॉस होगा। मेरा लॉस ये होगा कि मुझे उसमें से जो मोटिवेशन मिलता है वो उसके लिए बस इससे लाइक और कमेंट्स नहीं मिलने से या शेयर नहीं करने से, आप लोग नहीं करने से मुझे क्या मिलेगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। इसकी वजह से मैं वीडियोस अच्छे से नहीं बना पाऊंगी और
आप लोग के पास मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं पहुंचा सकूंगी, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और लास्ट जो वीडियोस थे उसके बारे में मैथमेटिकल और पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रिलेटेड, बेंगोली रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें से 9th नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो पे आए, मेरे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।